यो चलो बच्चों, अब कंसाइनमेंट का टुडे आई एम गोइंग टू टीच यू द नेक्स्ट पार्ट ऑफ इट. ओके, प्लीज पे अटेंशन. टुडे वी आर ऑन द लास्ट पार्ट ऑफ कंसाइनमेंट. Today we are on the last part of consignment as far as concepts are concerned. You will love this concept, that is for sure. Now listen to me. There is a person Rajiv. He is consigner. Rajiv कौन है? Consigner. Now he is sending goods to his consignee, and the name of the consignee is Rama Consignee. Now there is a big risk when goods are being sent to Rama. There is a big risk when goods are being sent to Rama. There is a big risk. What? That the profit percentage of consigner can be known to Rama. How? For example, suppose if I send goods of 100 rupees and Rama को वो 100 rupees में भेज रहा हूँ मैं. Cost is how much? 100 rupees. And what is, my dear friend, the price at which I am sending it to the consignee, goods sent to the consignee? It is also 100 rupees. Now consignee is selling it to the outsider. Outsider, the goods are sold at rupees 145. That means consignee Rama will always understand what is the profit percentage of consigner. Now that is a very risky business proposal in nowadays. देखो, कस्टमर तो उसके पास ऑलरेडी है ही है. Consignee is managing the customer on his own. Suppose if he manages how to manufacture those goods or how to produce those goods or how to buy those goods, he will be able to sell on his own account. एजेंट खुद के नाम पर बेचेगा ना. नाउ दैट बिकम्स अ वेरी रिस्की प्रपोजल. तो कभी भी अपने कॉम्पिटिटर को, राइट, हमारे बुक्स ऑफ अकाउंट्स का प्रॉफिट परसेंटेज ऑन ईच गुड्स शुड नॉट बी नोन टू हिम क्लियरली, इमीडिएटली. एम आई कम्युनिकेटिंग टू यू? सो हमको एक कैनवसिंग करनी पड़ेगी. कैनवसिंग मतलब उसको कॉस्ट के ऊपर गुड्स नहीं भेजना है, क्योंकि कॉस्ट के ऊपर गुड्स भेजते तो उसको पता चल जाता है कि हमारा प्रॉफिट एलिमेंट कितना है. सो समटाइम्स माय डियर फ्रेंड, द ओनर, द कंसाइनर वुड लाइक टू सेंड द गुड्स टू कंसाइनी एट अ प्राइस which is higher than the cost, so that the consignee will not understand what is the profit element in the goods. But there are few risk in this, risk attached to it. What are the risk? Who is the owner of the goods? Everyone. Who is the owner of goods? Consignee or consigner? Consigner. Now consigner is sending the goods to consignee at a higher price. That means there would be a profit. That means there would be a profit. And if there is a profit, my dear friend, we are recognizing profit with ourselves, which is wrong. अगर कंसाइनी को हमने माल भेजा at loaded price, at higher price, and कंसाइनी ने अभी तक माल बेचा ही नहीं, अभी तक कंसाइनी के गोडाउन में ही है, इधर ही है. Now who is the owner of the goods? We. Now because I am the owner of the goods, I have recognized the profit on the goods which are there with me only, which is wrong. I cannot make profit with myself. We need at least two parties to make the profit. Consignee is merely an agent. When I am sending the goods to consignee, it means the goods are with me only. Agreed? So if I am sending the goods to consignee at a higher price, that means I must have recognized the profit. And when I have recognized the profit, recognizing the profit with oneself is completely wrong. You cannot recognize the profit with oneself. अपने आप से profit नहीं कर सकते आप. Am I communicating? So shall I explain you कि इस चीज को किस तरीके से हमने अकाउंटिंग में ध्यान रखा. Are you ready? Let us see. शुरुआत से करते शुरू. स्टेप नंबर 1. ये पूरी स्टेप्स आपको एग्जाम में नहीं फॉलो करनी है, अभी बता रहा हूं क्योंकि आपका कंसेप्ट पूरा क्लियर हो इसलिए. स्टेप नंबर 1, बेटा कंसाइनर शुड buy the goods or produce the goods. So मैंने लिखा buy the goods. He will buy the goods. चलिए बताइए कितने रुपए में बाय किया होगा उसने? 1000 रुपीज में. Am I communicating? Yes. फिर बेटा मैं आपके सामने लिख देता हूं ट्रेडिंग अकाउंट. ट्रेडिंग अकाउंट किसका अकाउंट होता है बेटा?
कंसाइनर का अकाउंट होता है जिसमें वो माल कितना आया कितना बेचा इस सभी का हिसाब रखता है. सो ही विल राइट डाउन हियर 2 परचेसेस. बोलो हाँ, 2 परचेसेस, ही विल राइट डाउन 1000. बेटा आपको याद है मैंने आपको क्या सिखाया था कि कंसाइनर जब भी माल बेचता है कंसाइनी को तो कौन सी प्राइस पर बेचता है, मतलब पहले माल कितने भाव से निकलता है ट्रेडिंग अकाउंट में, एट कॉस्ट या एट लोडेड प्राइस, बताओ, या सेल प्राइस, एट कॉस्ट. याद आ रहा है? अब देखो उसका फायदा क्या होगा, मैं यहां से निकालूंगा बाय गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट. समझ में आ रहा है? कितने में बाहर किया बेटा मैंने? 1000. सर मगर आप तो बोल रहे थे लोडेड प्राइस. बेटा मगर हमने तो ये रूल बना के रखा है ना कि ट्रेडिंग अकाउंट में अगर माल सेल हुआ आउटसाइड पार्टी को तो ही सिर्फ सेलिंग प्राइस पर बाहर निकलता है, क्रेडिट होता है. अदरवाइज ऑलवेज इट विल बी क्रेडिटेड एट कॉस्ट. गुड्स लॉस्ट बाय फायर, distributed as free sample, anything which comes out of the trading account except sale. सेल के अलावा अगर आपने कोई भी चीज किया तो बेटा जी आप कौन सी प्राइस पर उसको आउट करते हो? एट कॉस्ट प्राइस. मैंने कॉस्ट प्राइस पर किया. अब बताओ मुझे प्रॉफिट रिकॉग्नाइज हो रहा है क्या? नहीं हो रहा है. चेक कर लो, डेबिट और क्रेडिट टैली हो रहा है आपका, देयर इज नो प्रॉफिट एलिमेंट हियर. सो इसका मतलब हमारा प्रॉफिट यहां पर तो रिकॉग्नाइज नहीं हुआ. कहां पे? ट्रेडिंग अकाउंट में रिकॉग्नाइज नहीं हुआ. अब चलते हैं इस अकाउंट को बनाते हैं. अभी ये अकाउंट बनाते हैं. एग्रीड? सो हम क्या करेंगे? गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट अकाउंट को बनाते हैं. गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट अकाउंट बनाया बेटा मैंने. गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट अकाउंट. इसके कौन से साइड में आएगा? ऊपर डेबिट साइड, क्रेडिट साइड में. तो नीचे कौन से साइड में आएगा? डेबिट साइड में. तो मैं इधर लिखूंगा टू ट्रेडिंग अकाउंट. बेटा पोस्टिंग की है मैंने, और क्या किया है? टू ट्रेडिंग अकाउंट 1000. एग्रीड? अब यहां से माल मैं कंसाइनी को भेजूंगा, दैट इज कंसाइनमेंट, एट लोडेड प्राइस. एट विच प्राइस? लोडेड प्राइस. मैं इधर लिखूंगा बाय कंसाइनमेंट अकाउंट. कितना आ गया? 1200. तो बेटा मैंने इधर लिख दिया कंसाइनमेंट अकाउंट. अरे मैंने इधर लिख दिया कंसाइनमेंट अकाउंट. ठीक है. और इधर कितना लिख दूंगा बेटा जी मैं? टू गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट. याद आ रहा है ना ये दो? 1200. आई ला, ये दिख रहा है क्या इधर? ये 1200 क्रेडिट और ये 1200 डेबिट. सर ये क्या कर रहे हो सर आप? बेटा कंसाइनी को हमने माल कॉस्ट पर नहीं भेजा, हमने कितने में भेजा है? 1200. सो मैंने क्या किया? पहले ट्रेडिंग अकाउंट को क्रेडिट किया एट कॉस्ट, फिर मैंने क्या किया? वहां से माल को निकाला वापस और किसको भेजा? कंसाइनी को. तो कंसाइनमेंट अकाउंट को डेबिट किया. एट व्हाट रेट? 1200. एम आई कम्युनिकेटिंग? मजा आ रहा है? अब देखते हैं इसको सेटल कैसे करते हैं 200 रुपीज का. एग्रीड? तो पहले मैं तुमको एक दूसरी फिलोसॉफी बताता हूं, इसको यहीं पर पेंडिंग रखता हूं और एक दूसरा अकाउंट दिखाता हूं. एग्रीड? बेटा मुझे थोड़ा सा समझ में नहीं आ रहा, बताना. ठीक है, आप खड़े हो जाएंगे सर. नाम बताइए आपका. शुभम. शुभम एक होनहार बच्चा है. ये मेरा कंसाइनर है. शुभम कंसाइनर है. शुभम 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 ये मेरा कंसाइनर है. ठीक है. शुभम भाई ने मुझे माल भेजा राइट 100 रुपीज पर. तो कॉस्ट है, देखो कंसाइनमेंट अकाउंट इज विच अकाउंट माय डियर फ्रेंड? बोलो ना, कंसाइनमेंट अकाउंट कौन सा है? नॉमिनल अकाउंट. तो सारे एक्सपेंसेस कहां पर लिखूंगा मैं? डेबिट साइड में. और सारी इनकम कहां पर लिखूंगा मैं? क्रेडिट साइड में. एम आई कम्युनिकेटिंग? तो मैंने एक्सपेंस लिखा, कॉस्ट पे 100 मेरे पास आया. अब बेटा मैं इसको बेच रहा हूं 120 पर. प्रॉफिट रिकॉग्नाइज होगा कि नहीं होगा? होगा. 100 इज द कॉस्ट, सेल इज 120, दैट मींस प्रॉफिट इज 20. लोचा कहां पे हो रहा है? देखो अब मेरे को शुभम ने बोला कि कंसाइनर को माल, कंसाइनर ने कंसाइनी को माल भेजा है 120, तो वो कंसाइनमेंट अकाउंट को कितने से डेबिट करेगा? 120. मैं बेचूंगा कितने में? 120. बिकॉज इज सेंडिंग मी एट अ लोडेड प्राइस, इज सेंडिंग मी एट अ इनवॉइस प्राइस, इज सेंडिंग मी एट अ सेल प्राइस. वो मेरे को बोल रहा है आनंद भाई आपको 120 रुपए में बेचना है. मैंने बोला ठीक है. तो मैंने कंसाइनमेंट, जो कंसाइनर का कंसाइनमेंट अकाउंट है वो बना रहा हूं मैं. बनाएगा ना ये कंसाइनर कंसाइनमेंट अकाउंट. तो बोलेगा आनंद को माल कितने में भेजा? बट नेचुरल है, इनवॉइस बना है, डॉक्यूमेंट बना है, जो ऑडिटर आप चेक करोगे तो कितने का बना है? 100 का नहीं, 120 का बना है. सो 120 की एंट्री आई. अब मैं बेचूंगा कितने में? 120 में. अरे बट नेचुरल 120 में बेचूंगा. मेरे को बोला है उसने, वो कॉल करके बोला सेल प्राइस 120, एमआरपी 120, मैंने 120 में बेचा. अब लोग येड़ा बोलने लग गए, क्योंकि देखो तुम्हारे आंखों के सामने कंसाइनमेंट अकाउंट, गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट
और यहाँ पर कंसाइनी। मेरे समझ में नहीं आ रहा बनाया क्यों फिर अकाउंट ये? जब डेबिट में 120 और क्रेडिट में 120 तो क्या प्रॉफिट बताएगा क्या अकाउंट? लोग एड़ा बोलते, पत्थरा मारते। समझ में आ रही है क्या बात? लोचा कहां समझ में आ रहा है क्या? जब हम लोडेड प्राइस पर गुड्स को बेचते हैं, जब हम लोडेड प्राइस पर, हायर प्राइस पर, सेलिंग प्राइस पर, एमआरपी पर, इनवॉइस प्राइस पर, कोई भी नाम बोलो, अगर वी सेंड द गुड्स ऑन दिस प्राइस, देन माय डियर फ्रेंड व्हेन आई सेल आई कैन नॉट रिकॉग्नाइज प्रॉफिट, आई कैन नॉट रिकॉग्नाइज लॉस। हाउ? कि जितने में माल आया उतने में बाहर गया। Am I communicating? Let us understand. किसी ने मुझे भेजा 1500, इसमें कॉस्ट है 1000 और प्रॉफिट है 500। मुझे भेजा कितने में? 1500। थम्स अप। मैंने इसको सेल भी किया 1500। अब प्रॉफिट निकलेगा कहां से? नहीं निकलेगा। तो मैं तुमको बताऊं क्या करना पड़ता है फिर। ये देखो, फिर मैं बनाता हूं इधर कंसाइनमेंट अकाउंट। ये बनाया क्या? इधर लिखेंगे टू गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट। मैंने कुछ गलत लिखा क्या? नहीं। जैसे ही मैं गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट लिखूं, आपको ध्यान में रखना, कोई बोले या ना बोले, इफ आई सेंड द गुड एट लोडेड प्राइस, देन आई शुड रिवर्स द लोडिंग। Means I'll do what? I'll credit the loading amount. कैसे देखो? I'll write down by goods sent on consignment 500. मैं लोडिंग को रिवर्स कर रहा हूं इमीडिएटली 1500। अच्छा, ये अकाउंटिंग किसके बुक्स में चल रहा है? कंसाइनर। कंसाइनी को पता चलेगा क्या ये कि मैंने लोडिंग रिवर्स की है? मैं थोड़ी ना भेजूंगा उसको, ये तो मेरे बुक्स में हो रहा है ना सारा। कंसाइनर एक डॉक्यूमेंट भेजेगा, कितने का? कि तेरे को माल भेजा 1500 रुपए का, मिलते ही स्टैम्प मारकर भेज देना। उसने भेज दिया। अब तुम एज अ ऑडिटर, एज अ अकाउंटेंट एंट्री करोगे तो तुम डॉक्यूमेंट के बेसिस पर ही एंट्री करोगे। डॉक्यूमेंट में कितना लिखा हुआ है? 1500। एम आई कम्युनिकेटिंग? अब बेटा जब तुम सीए बन जाओगे और जब तुमको एडजस्टमेंट एंट्री करनी पड़ेगी, तब तुम एडजस्टमेंट एंट्री क्या करते हो? जितने का माल भेजा है लोडेड प्राइस पर, उसकी लोडिंग पहले रिवर्स करते हो। लोडिंग रिवर्स करते हो मतलब क्या? ये गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट 1500, इसकी लोडिंग रिवर्स करोगे कौन से साइड में? क्रेडिट साइड में। कितना? 500। अब मुझे बताओ सेल प्राइस क्या है गुड्स की? 1500। तो बेटा मैं इधर लिखूंगा बाय सेल या बाय कंसाइनी अकाउंट। कंसाइनी तो 1500 में बेचेगा ना? हाँ। अब मुझे बताओ प्रॉफिट दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? यस। तो तुमको समझ में आया लोडिंग क्यों रिवर्स होती है? मगर ये लोडिंग कब रिवर्स होती है? तुमको एकदम सिंपल ट्रिक बता देता हूं। जब माल आउटसाइडर को भेजा, बेचा या भेजा, आउटसाइडर, आउटसाइडर मतलब कौन? थर्ड पार्टी, नॉट कंसाइनी, नॉट कंसाइनी, नॉट कंसाइनी, थर्ड पार्टी, बायर, एनीवन। इफ आई सेंड गुड्स टू थर्ड पार्टी और इफ आई रिसीव सेल्स रिटर्न फ्रॉम थर्ड पार्टी, लोडिंग विल नॉट बी रिवर्स्ड। बट व्हेन आई send the goods to consignee, that means when the transaction is between consignor and consignee, loading is reversed. कंसाइनर और कंसाइनी के बीच में ट्रांजैक्शन हुई तो ही लोडिंग रिवर्स होगी। कंसाइनी और डेटर, कंसाइनी और कस्टमर के बीच में ट्रांजैक्शन हुई, लोडिंग रिवर्स नहीं होती। लोडिंग रिवर्स होगी किसके बीच में? सिर्फ कंसाइनर और कंसाइनी। क्यों? वो भी हम ओनर है गुड्स के, इसीलिए लोडिंग रिवर्स करना जरूरी है। मुझे याद नहीं है। कंसाइनी ने कस्टमर को माल बेचा, लोडिंग रिवर्स होगी। से यस होगी? बोलो हाँ। तो किसके बीच में लोडिंग रिवर्स है? कंसाइनर और कंसाइनी के बीच की ट्रांजैक्शन कोई भी गुड्स का हो तो उसमें क्या रिवर्स होता है? लोडिंग। लोडिंग रिवर्स करने की एकदम सिंपल ट्रिक है, जिस तरफ आप लिखते हो उसके रिवर्स साइड में आपने क्या लिख देना है? लोडिंग रिवर्स। एम आई कम्युनिकेटिंग? चलिए आइए हम देख लेते कैसे होगा। ऊपर वाली स्टोरी याद करते। बेटा मैंने माल खरीदा, कितने रुपए में खरीदा? 1000 रुपए में। फिर ट्रेडिंग अकाउंट से हमेशा गुड्स बाहर निकलेंगे, कौन सी प्राइस पर? एट कॉस्ट। फिर मैं उसको ले जाकर कहां पे पटकूंगा? गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट। ये यहां पर दिख रहा है क्या? 1000। अब ये गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट यहां से बाहर निकलेगा और किसके अंदर जाएगा? कंसाइनमेंट अकाउंट। एट व्हाट प्राइस? लोडेड प्राइस। दिख रहा है कितनी है लोडेड प्राइस? 1200। एग्रीड। और फिर ये कहां पे जाता है? कंसाइनमेंट अकाउंट के डेबिट साइड में, टू गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट 1200। आपके लिए लिख रहा हूं लोडेड प्राइस। से यस।
जैसे ही मैं लिखूं इसका क्या रिवर्स करना पड़ेगा मुझे, लोडिंग रिवर्स। तो मैं इधर क्या लिख दूंगा, बाय गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट, कितना लिख दूंगा, 200। एग्रीड। अब जैसे मैं यहां पर लिखूंगा इसका सेकंड पोस्टिंग इधर आएगा कि नहीं आएगा, टू गुड सेंट ऑन कंसाइनमेंट, कितना आ जाएगा, सॉरी गुड सेंट ऑन कंसाइनमेंट में ये नहीं आएगा, टू कंसाइनमेंट। एग्रीड। बताओ बेटा कितना आ जाएगा, 200। बेटा आप बताओ मुझे, ये अकाउंट टैली हो गया क्या, राइट। फ्यूचर में मान लो माल सेल हो गया, बाय कंसाइनी अकाउंट, कितने में सेल हुआ, 1200 या जितने में भी सेल हुआ, आपका प्रॉफिट रिकॉग्नाइज हुआ कि नहीं हुआ, यस। तो तुमको पूरी प्रोसीजर समझ में आई। चलो पूरी प्रोसीजर मेरे साथ रिवाइज करो, क्योंकि फिर उसके बाद में मैं पॉइंट्स लिख कर दूंगा, तब आपको याद रखना आसान हो जाएगा। इट इज नॉट डिफिकल्ट, इट इज वेरी कंसेप्चुअल एक्चुअली, यू विल हैव टू फोकस ऑन कंसेप्ट, आ जाएगा। पहले क्या होता है, माल बाय होता है, तो कहां पे जाता है माल बाय होकर, ट्रेडिंग के डेबिट में। फिर वहां पर अगर माल सेल हुआ थर्ड पार्टी को, आउटसाइडर को, तो कौन सी प्राइस पर बाहर निकलता है, सेलिंग प्राइस। अगर माल सेल हुआ तो सेलिंग प्राइस, सेल छोड़कर कुछ भी किया एट कॉस्ट माल बाहर निकलता है। अभी हमने किधर माल भेजा है, कंसाइनी, तो हम क्या करेंगे, बाय गुड सेंट ऑन कंसाइनमेंट। एम आई कम्युनिकेटिंग? सो क्रेडिट साइड में हम लिखेंगे बाय गुड सेंट ऑन कंसाइनमेंट एट विच प्राइस, एट कॉस्ट। और यही कहां पर आता है, गुड सेंट ऑन कंसाइनमेंट अकाउंट के कौन से साइड में, डेबिट साइड में। ये आपने एंट्री की हुई है ऑलरेडी, गुड सेंट ऑन कंसाइनमेंट टू ट्रेडिंग अकाउंट, और मैं आपको चीख चीख कर बोलता था एट कॉस्ट, की थी ना, हाउ टू क्लोज गुड सेंट ऑन कंसाइनमेंट एट कॉस्ट। तो ट्रेडिंग अकाउंट के कौन से साइड में आया, डेबिट साइड में। एम आई कम्युनिकेटिंग? सॉरी, गुड सेंट ऑन कंसाइनमेंट के कौन से साइड में आया, डेबिट साइड। यहां से माल निकलता है लोडेड प्राइस पर, और कहां जाता है, कंसाइनमेंट अकाउंट पर। तो हम क्या लिखेंगे, बाय कंसाइनमेंट अकाउंट 1200, और कंसाइनमेंट अकाउंट के डेबिट साइड में कितना आएगा, 1200। माय डियर फ्रेंड, व्हाट आर यू गोइंग टू डू नाउ, यू आर गोइंग टू रिवर्स द लोडिंग। कौन से अकाउंट में रिवर्स करोगे लोडिंग, कंसाइनमेंट अकाउंट में। और जैसे ही कंसाइनमेंट अकाउंट में लोडिंग रिवर्स करोगे तो उसका वापस एक इफेक्ट कहां पे जाएगा, गुड सेंट ऑन कंसाइनमेंट अकाउंट, डेबिट साइड। एग्रीड। तो आप एक बार लिख कर ले लेंगे पूरी स्टोरी, ठीक है। तो स्टेप नंबर 1 क्या होता है, ट्रेडिंग अकाउंट में पहले परचेसेस आता है। एकदम सिंपल सी स्टोरी से बना लो, पहले परचेस किया। ये पूरा स्टोरी हमको एग्जाम में करना पड़ेगा क्या, बिल्कुल नहीं। मैं आपको अभी नोट्स लिख कर दूंगा कि जो जो चीजें आपको याद रखनी, बिल्कुल भी कुछ भी याद नहीं करना ये, ठीक है। चलिए बनाइए पहले, कंसाइनर बाय गुड्स एट 1000। कंसाइनर ने माल बाय किया कितने रुपए में, 1000 रुपए में। टू परचेसेस डेबिट साइड में, टू परचेसेस डेबिट साइड में, एग्रीड बेटा। अच्छा, क्रेडिट साइड में क्या लिखेंगे, बाय गुड सेंट ऑन कंसाइनमेंट। ध्यान रहे, ट्रेडिंग अकाउंट में जब भी कोई सौदा हो, अगर सेल नहीं है तो वो कौन सी वैल्यू पर माल बाहर निकलेगा, एट कॉस्ट। तो मैंने क्रेडिट साइड एट कॉस्ट में माल बाहर निकाला, राइट। फिर सेकेंड स्टेप क्या करना है, ये स्टेप नंबर 1 हो गई। स्टेप नंबर 2 क्या होती है, हम गुड सेंट ऑन कंसाइनमेंट में आएंगे, इधर सेकेंड स्टेप ये आई, सही है ना, दिस इज द सेकेंड स्टेप। फिर ये यहां पर आपकी बनेगी थर्ड स्टेप, ये निकलेगी लोडेड प्राइस पर। एग्रीड बेटा जी, एम आई कम्युनिकेटिंग? अब जैसे ही वो ट्रेडिंग अकाउंट से बाहर निकला तो वो लोडेड प्राइस पर बाहर निकलता है, और ये लोडेड प्राइस यहां पर जाती है स्टेप नंबर 3 में। ये भी स्टेप नंबर 3 है, लोडेड प्राइस। एग्रीड? ऊपर लूं? बेटा जब लोडेड प्राइस पर आता है
तो कंसाइनमेंट अकाउंट यूजलेस हो जाएगा बिकॉज आई मे नॉट बी एबल टू रिकॉग्नाइज द प्रॉफिट. सो व्हाट आई हैव टू डू, आई हैव टू रिवर्स द लोडिंग. उसका हमने एक एग्जांपल बनाकर देखा कि क्यों लोडिंग रिवर्स की जाती है, नहीं तो हम प्रॉफिट का भी रिकॉग्नाइज कर ही नहीं पाएंगे, ना प्रॉफिट ना लॉस. तो बेटा हम क्या करेंगे, इसमें यहां पर ये लोडिंग रिवर्स की, ये स्टेप नंबर 4, और जैसे ही ये स्टेप नंबर 4 हुआ, ये यहां पर उसका सेकेंड इफेक्ट गया 4th, रिवर्सल ऑफ लोडिंग. सही है, रिवर्सल ऑफ लोडिंग कंसाइनमेंट अकाउंट के क्रेडिट साइड में और गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट के डेबिट साइड में. यस योर क्वेरी. ऊपर लूं मतलब नीचे लूं, ऊपर लूं, कैसे, ऐसे क्या, ऐसे और नीचे लूं, नीचे कुछ है नहीं, इतना ही है. इधर देखिए, और ये लास्ट 5th वन, कंसाइनी माल बेचेगा. एग्रीड. कुछ पॉइंट्स लिखेंगे अभी हम हमारे लिए रेफरेंस के लिए, एग्जाम में कैसे आता है ये क्वेश्चन. पॉइंट्स लिख लेते. लेट अस राइट डाउन द पॉइंट्स, की पॉइंट्स. कंसाइनमेंट अकाउंट will always be maintained, will always be maintained at cost to consignee को जितने में भेजा है, at cost to consignee, that is loaded price. ये समझ जाओ बाबू मुझे, अगर लोडेड प्राइस पर माल भेजा है, always and always कंसाइनमेंट अकाउंट में इट विल ऑलवेज बी एट लोडेड प्राइस. मतलब डेबिट लोडेड प्राइस पर, क्रेडिट लोडेड प्राइस पर. समझ में आया कि नहीं है. सो अगर आपने लोडेड प्राइस पर भेजा है माल, तो ध्यान रहे कंसाइनमेंट अकाउंट विल ऑलवेज हैव डेबिट एंड क्रेडिट बोथ एट लोडेड प्राइस. और उसमें क्या करना पड़ता है, लोडिंग इज रिवर्स. राइट. सेकेंड पॉइंट लिखेंगे, ये फर्स्ट पॉइंट. Loading is reversed only in case of transaction between consignor and consignee. Am I communicating? Next, third one. On closing stock with consignee. On closing stock with consignee, loading is called as stock reserve. अगर आप क्लोजिंग स्टॉक की बात करोगे तो क्लोजिंग स्टॉक पर जो बनता है वो क्या बनता है बेटा जी, स्टॉक रिजर्व. मैं वापस आपको इत्तला कर दूं, वापस बता दूं कि कंसाइनमेंट अकाउंट विल ऑलवेज बी प्रिपेयर्ड एट लोडेड प्राइस. अगर लोडेड प्राइस पर चल रहा है ना सारा मसला कामकाज, तो कौन सी प्राइस पर जाएगा, एट लोडेड प्राइस. यू नीड नॉट थिंक सेकंड ऑल्सो इन दिस केस, ऑलवेज एट लोडेड प्राइस. एम आई कम्युनिकेटिंग? यस. शैल वी गो अहेड? Now shall I draw a consignment account for you so that we understand it now? So draw a consignment account along with me. Consignment account, and I start working like this. I write down two goods sent on consignment. Two goods sent on consignment. ठीक है. मैं आपको समझाने के लिए एक एग्जांपल ले रहा हूं. 1200 इधर लिख देता हूं. कॉस्ट कितनी है बेटा जी, 1000 इज द कॉस्ट, और लोडिंग कितने की है, 200. आपको समझाने के लिए लिख रहा हूं. अब गुड सेंट ऑन कंसाइनमेंट रहा तो मैं क्या करूंगा, इमीडिएटली किसी के ना कहते हुए भी मैं इधर लिख दूंगा बाय गुड सेंट ऑन कंसाइनमेंट. कितना लिख दूंगा बेटा, 200. एग्रीड?
मान लो इसमें से आधा माल बिक गया, हाउ मच इज सोल्ड? हाफ. You can sell it at any price. You can sell it at 600, you can sell it at 700, you can, because क्योंकि कंसाइनी को हम हमेशा मोटिवेट क्या करते हैं, जो प्राइस पर तेरे को भेजा है उससे ऊपर भी बेचा तो चलेगा. ये पता है ना, ओवरराइडिंग कमीशन मिलता है उसको उसके लिए. सो कंसाइनी को तुमने बोला कि 1200 रुपए में माल बेच दे 1200 में. कंसाइनी बोला क्यों, थोड़ा और मैं बेच पा रहा हूं मैं, आई कैन सेल इट फॉर अराउंड 1500. सो वी से ओके, वेरी गुड, सेल इट. 1200 कम से कम ऊपर बेचता है तो बहुत अच्छा है. समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? तो अगर आपको एग्जामिनर ने ऐसे कहा कि कंसाइनी ने आधा माल बेच दिया, कितना? आधा, 50%, एंड ही हैज गिवन यू द रेट कि हैज सोल्ड द 50% ऑफ द गुड्स एट 700 रुपीज. कितना? 700 रुपए. एक्चुअली कितने में बेचना चाहिए था उसने 1200 का माल? 600. बोलो ना, 600 ना. तो प्रॉफिट कितने का होना चाहिए था? आधा माल बिका है, पूरे माल के ऊपर प्रॉफिट कितना है? 200. तो आधे माल पर प्रॉफिट कितना होगा? 100. मगर मैं बोल रहा हूं अगर आपने ऊपर की प्राइस पर बेचा है ना, तो देखना अभी आपका प्रॉफिट कितना आता है. प्लीज 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 फोकस. अब देखो मैं इधर कर रहा हूं, बाय कंसाइनी अकाउंट 50% गुड सोल्ड. कितना आएगा बेटा जी? मैंने लिखा 700. अब कुछ बच्चे मुझे बोलेंगे सर सुनिए ना, लोडिंग रिवर्स करते हैं ना, चलो ना. मैं बजा के दूंगा ना लाइक को. 10 बार बोल चुका हूं कि जो ट्रांजैक्शन कंसाइनर और कंसाइनी के बीच की होती है उसी पर सिर्फ लोडिंग रिवर्स होती है. जो ट्रांजैक्शन बिटवीन कंसाइनी और आउटसाइडर की है उसके ऊपर लोडिंग रिवर्स नहीं होती. तो मैं इधर लोडिंग रिवर्स नहीं करूंगा. अब माल कितने में बिकना चाहिए था बेटा? 600. बेचा कितने में? 700. तो बेटा प्रॉफिट जो 100 होने वाला था वो कितने का हो गया? 200. और मैं आपको प्रूव करके दिखाऊंगा कि 200 प्रॉफिट आएगा. अभी हमने निकाल लिया ओरली, कितने का प्रॉफिट आएगा? 200. अब नाउ लेट्स सी स्टॉक कितना बचेगा. बट नेचुरल 50% स्टॉक बचेगा. बोलो ना, बाय स्टॉक. बेटा मैंने क्या बताया कि कंसाइनमेंट अकाउंट स्टॉक के मामले में जब भी बात आए, सेल छोड़ दो, स्टॉक की बात है तो किसकी कॉस्ट पर मेंटेन होता है? कॉस्ट टू कंसाइनी. एम आई कम्युनिकेटिंग? कॉस्ट टू कंसाइनी कितने में, उसको कितने में भेजा था? 1200. सोचना भी नहीं दूसरी कोई चीज. हमारे लिए भी कॉस्ट कितनी होगी? 600. 50% ऑफ 1200. अरे समझे कि नहीं समझे बाबू मोशा है, हाँ या ना? जब हम स्टॉक लिखते हैं तो स्टॉक के अगेंस्ट में वापस मुझे लिखना पड़ता है टू स्टॉक रिजर्व. और कितना आएगा बेटा स्टॉक रिजर्व? 100. क्योंकि पूरे माल के ऊपर कितना प्रॉफिट था? 200. आधे माल पर कितना प्रॉफिट है? 100. ध्यान रहे, मैं वापस बोल रहा हूं, कंसाइनमेंट अकाउंट इज ऑलवेज मेंटेन्ड एट कॉस्ट टू कंसाइनी. मतलब लोडेड प्राइस पर मेंटेन होगा, नॉट द कॉस्ट टू कंसाइनर. किसकी कॉस्ट? कंसाइनी की कॉस्ट. कंसाइनी की कौन सी कॉस्ट होती है बेटा जी? लोडेड प्राइस. सो मैंने क्लोजिंग स्टॉक कितने में लिखा? 600. उसके अगेंस्ट में लोडिंग रिवर्स की स्टॉक रिजर्व के नाम पर क्या आएगा? 100. तो बेटा आप बैलेंस मुझे बताओ, इधर क्या आएगा? 2 NP. देख कर बताओ मुझे NP कितने का आ रहा है? 200 आएगा. मैं बिना देखे ही बता देता हूं, मुझे पता है 200 ही आना चाहिए. चेक कर लो मैच हो रहा है क्या? मुझे नहीं समझा, मैं नहीं 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 मैं नहीं देखने दूंगा, मुझे समझा ही नहीं है कुछ. बताओ पहले क्या करते हैं? अच्छा, गुड सेंट ऑन कंसाइनमेंट कौन सी प्राइस पर? लोडेड प्राइस पर. कॉस्ट टू व्हाट? कंसाइनी. लोडेड प्राइस पर डेबिट. जैसे ही लोडेड प्राइस लिखा, क्या रिवर्स करने का? लोडिंग. फिर आपको बोलेंगे कि कंसाइनी में इतने में सेल किया, जितने में सेल किया बोलेगा ले बाय कंसाइनी अकाउंट. अमाउंट लिख देना जितने में सेल किया. फिर जितना माल बचा है वो भी कौन से प्राइस पर लेने का? लोडेड प्राइस पर. बोलो कौन सी प्राइस पर लोगे ना? लोडेड प्राइस. जैसे ही लोडेड प्राइस पर लिखा, उसका क्या रिवर्स करते हैं? स्टॉक रिजर्व. मैंने क्या बताया? क्लोजिंग स्टॉक के लिए वर्ड क्या यूज करोगे? स्टॉक रिजर्व. और जब गुड्स सेंट टू कंसाइनमेंट है तो उसी के एंगल से आप गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट ही रिवर्स करते हो. एग्रीड? तो लिख कर ले लो, बहुत इंपॉर्टेंट चीजें पता चल रही है आपको इसमें. जब माल भेजते हैं ये वाला पार्ट, तो रिवर्सल भी उसी अकाउंट से होता है. एग्रीड? मगर जब बेटा क्लोजिंग स्टॉक बच जाता है तो क्लोजिंग स्टॉक के लिए आप एक नया वर्ड यूज करते हैं जिसको क्या कहते हैं? स्टॉक रिजर्व. सर ऐसा क्यों यूज करते हैं? आगे आईपीसीसी में आपको थोड़ा और क्लियर होगा, अभी के लिए इतना काफी होगा. समझ में आया? हैप्पी? लिख लीजिए ये भी.
क्योंकि अभी मैं आपको इसके रिलेशन में क्वेश्चन कराने वाला हूं। यो क्या हो गया? मर रहा है क्या? नहीं देता, अब क्या करता है? लाकर इधर रखूंगा, दूंगा नहीं, देख लेना तुम। चलो दो एक बार। टेक्स्ट बुक दो, कोई प्यारा प्यारा बच्चा टेक्स्ट बुक देगा। प्यारा नहीं भी होगा तो दे दो। पेज नंबर बताओ बेटा, कितना? 9 पॉइंट यो 10 पॉइंट कुछ है। नाउ कम डाउन टू द क्वेश्चन नंबर। पहले कौन सा करेंगे? पहले कौन सा करूं? चलिए आ जाइए, पहले 5 कर लेते। 5 करूं, यस 5 कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 5। चलिए बेटा लिख लीजिए क्वेश्चन नंबर 5, 6, 7 और 8। ये किसके लिए करना है आपको काम? कंसेप्ट के लिए। यू हैव टू स्टडी दिस क्वेश्चंस फॉर द कंसेप्ट्स। ऐसे इतने बड़े क्वेश्चन एग्जाम में नहीं आएंगे, चिंता नहीं करो। पढ़ते कुछ ही दिनों में सिलेबस चेंज होने वाला है, सुनहरा मौका है, कर लो। राइट, तो पढ़ लेते। एक्स ऑफ दिल्ली परचेस्ड 10,000 meters of cloth for rupees 2 lakh, of which 5,000 meters were sent on consignment to Y of Agra at the selling price of rupees 30 per meter. Please highlight the word at a selling price of rupees 30 per meter. ज्यादा आगे जाने की जरूरत नहीं, फुदकने की जरूरत नहीं, इधर की इधर बात करो अभी मेरे साथ। मुझे बताओ कितने में बाय किया है? 2 lakhs। 2 lakhs में बाय किया है, तो एक की कितनी क्वांटिटी, एक का प्राइस कितना होगा? डिवाइड बाय 10,000, मेरे हिसाब से आएगा रुपीज 20 पर मीटर। बोलो ना हाँ। क्या बढ़िया बात करते हो यार। 10,000 मीटर में से कितना कपड़ा भेज दिया? 5,000 मीटर। देखो, ऑफ विच 5,000 मीटर्स वर सेंट ऑन कंसाइनमेंट टू वाई ऑफ आगरा एट अ सेलिंग प्राइस ऑफ 30 पर मीटर। मुझे कोई दिमाग लगाना ही नहीं है। ये देख, मैं क्या करूंगा, इधर मैं इधर लिखूंगा 2 गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट। कितना लिख दूंगा नालायक बच्चे? 5,000 इंटू रुपीज बशी 30। अरे बोला है इतना क्लियरली एट अ सेलिंग प्राइस, तुम बोलते वापस 20। बोला है ना सेलिंग प्राइस। अब मुझे बताओ प्रॉफिट एलिमेंट कितना है? प्रॉफिट एलिमेंट कितना है? कॉस्ट 20 है, तो प्रॉफिट एलिमेंट कितना है? 10। क्लियर? कितने से लोडिंग रिवर्स होगी? 10। अगर नहीं किया तो क्या प्रॉफिट निकल सकता है क्या? फिर लोग क्या बोलते हैं? ये डा हाँ या नहीं? इसलिए हम क्या करेंगे, इधर से लोडिंग रिवर्स। क्या नाम से लोडिंग रिवर्स होती है? बाय गुड सेंट ऑन कंसाइनमेंट। कितना आएगा बेटा? 5,000 इंटू रुपीज 10। बताओ इसमें कितने कितने बच्चों को अड़चन है? मैंने क्या किया? मैंने लोडेड प्राइस पर डेबिट किया, तो उसकी लोडिंग क्या कर दी बेटा जी? रिवर्स। साधु संत समझ में आ रहा है ना तुझे? वो उसी मुद्रा में बैठा है, इसलिए तुझे बोल रहा हूं। X paid rupees 5,000 for freight and 500 for packaging etc. X paid how much? 5,000 for what? Freight and 500 for packing etc. एंट्री याद करो गांव वालों, एंट्री क्या थी? कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट टू कैश ऑब्लिक बैंक अकाउंट। लो मैं कर दूंगा तो कैश ऑब्लिक बैंक अकाउंट। कोई लिखेगा नहीं नालायक। क्या लिख दूंगा? फ्रेट। और क्या लिख दूंगा? पेकिंग। पेकिंग पेकिंग 5,000 और ये कितना लिख दूंगा? 500। अरे इसका भी तो फिगर बता दो यार, कितना आता है? 1,50,000 और ये इधर कितना आ जाएगा? 50,000। चलो आसान है, 2 स्टेप तो आसान है। अगला क्या है? हाय रब्बा, वाई सोल्ड 4,000 मीटर एट रुपीज 40 पर मीटर। ये और 1.5 आना निकला। 1.5 आना याद है ना? और स्मार्ट, ये और स्मार्ट निकला ना? कितने में बेचने के लिए बोला था इस नालायक को? 30 में।
कितने में बेच दिया? 40 में। तो मुझे एक बात बताओ, क्लोजिंग स्टॉक कितना बचा होगा? 1000 अभी के लिए, फिलहाल के लिए तो 5000 भेजा था, 5000 में से 4000 भेज दिया, बच गया कितना? सांभा 1000। सही बोलता है सांभा। बाय कंसाइनी अकाउंट, वाई लिख दूं क्या कंसाइनी की जगह? बाय वाई अकाउंट कितने में सेल किया? 4000 मीटर इंटू ₹40। अच्छा, तो 4000 1,60,000। मेरे हिसाब से लोडिंग रिवर्स करनी पड़ेगी। बोलो हाँ, बोलो हाँ। पक्का? क्यों क्यों क्यों? ट्रांजैक्शन बिटवीन कंसाइनी एंड आउटसाइडर, थर्ड पार्टी। लोडिंग इज नॉट रिवर्स, हम लोडिंग रिवर्स नहीं करेंगे। से यस। आगे बढ़ते बच्चा, फिर क्या बोलते हैं? एंड इनकर्ड 22,000 फॉर सेलिंग एक्सपेंसेस। सेलिंग एक्सपेंसेस हम किधर डेबिट करेंगे? कंसाइनमेंट को, बराबर है ना? टू वाई अकाउंट क्या लिखूंगा? सेलिंग एक्सपेंसेस। बोलो रे बाबा कितना लिखूं? 2000। फिर क्या हुआ? वाई इज एंटाइटल्ड टू कमीशन ऑफ 5% ऑन टोटल सेल। 1000 बार अंडरलाइन करो, टोटल सेल बोला है। टोटल सेल कितना है? 1,60,000। टोटल सेल पर कितना परसेंट है बेटा? 5%। 5% on total sales proceeds plus a further 20% on any surplus price realized over ₹30 per meter। वाह वाह, कर लेंगे हम, कोई दिक्कत नहीं है। कमीशन निकालूं? ये देखो कमीशन निकालता हूं। कमीशन, पहले ऑर्डिनरी कमीशन की बात करते। ऑर्डिनरी कमीशन बोला है उन्होंने 5% ऑफ टोटल सेल्स। टोटल सेल्स कितना है? 1,60,000। बताएंगे जरा कितना आता है? 8,000 प्लस कौन सा है? ओवरराइडिंग है क्या? हाँ, ओवरराइडिंग कितना है बेटा जी? 20%। 20% ऑन सरप्लस रियलाइज। सो 20% ऑफ, मैं क्या बोलता हूं, कितने में बेचा? कितने में बेचा? कितने में बेचा? 40। कितने में बेचने के लिए कहा था? 30। सरप्लस कितना हुआ सांबा? 10 इंटू कितने यूनिट बेच दिए? 4000। तो बेटा 10 इंटू 4000 इंटू 20%, 8000 आ रहा है ये भी। अरे रब्बा क्या बात करते हो। तो कितना आया कमीशन? 16,000 कमीशन आया। सही है ना? ये कौन सा कमीशन है? ओवरराइडिंग। 20% ऑफ सरप्लस इनटू द क्वांटिटी सोल्ड। बोलो हाँ हाँ। चला 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 इधर कमीशन। कमीशन कितना लिख दूं? 8,000। Oh, I'm sorry. 16,000. You're right. You're right. Let's go ahead. आगे क्या बोला? 3,000 meters were sold at Delhi at ₹30 per meter, less 3,000 for expenses and commission. सर ये क्या बात कर रहे हैं? अरे ये कमीना एग्जामिनर घुसेड़ रहा है किसको? कंसाइनर ने भी तो खुद के खुद लेवल पर सेल किया होगा। यस और नो? हमको किसका चाहिए? कंसाइनी का। इसको थोड़ी देर के लिए इग्नोर करो, ये जब मैं रियल प्रॉब्लम सॉल्व करूंगा तब बता दूंगा। ये खुद ने बेचा है ना उसने। दिल्ली कहां पे? दिल्ली 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 एक्स की नगरी है। और वाई की नगरी कहां है? वाई की आगरा है। नहीं, आगरा में जो बिकेगा मैं उसकी अकाउंटिंग कर रहा हूं। दिल्ली में जो बिकेगा वो तो खुद ओनर ही बेच रहा है ना। वो नॉर्मल 11th में करते थे ट्रेडिंग अकाउंट के, डेबिट में परचेसेस, क्रेडिट में क्या? सेल्स। वही राडा करने का इधर। से यस यस। Let us go ahead. What is the next? Oh, read it very carefully. Owing to fall in market price, the stock of the cloth in hand is to be reduced by 10%. मतलब क्या? हाँ? क्या करूं मतलब? वो ये बोल रहा है कि because there is a fall in the market price कम हो रही, धड़ 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 धड़, राइट? स्टॉक को कितने से कम कर दो? 10%। हमने बोला क्यों नहीं करेंगे, कर देंगे कम। आपने बोला और हम नहीं करेंगे, कर देंगे। कैसे कम करना है सर? मगर अरे पोपटिया, स्टॉक का पहले वैल्यूएशन निकालने का। निकालोगे? नहीं निकालोगे? पहले क्या निकालोगे? हेलो, हाँ। तो बेटा स्टॉक का वैल्यूएशन निकालोगे। कैसे निकालोगे? लोडेड प्राइस पर। क्योंकि मैंने आपको बोला था कि कंसाइनमेंट में, कंसाइनमेंट में अगर लोडेड प्राइस पर माल भेजा है
तो पूरा स्टॉक का वैल्यूएशन किस पर होता है? लोडेड प्राइस। मैं आपको क्या बोल रहा हूं सर, सिंपल सी चीज, स्टॉक को वैल्यू करो एट लोडेड प्राइस। कर सकते हो कि नहीं कर सकते हो? यस और नो? यस। फिर क्या करने का? उसका स्टॉक रिजर्व निकालने का। क्यों? क्योंकि मैंने आपको बोला था कि अगर लोडेड प्राइस पर स्टॉक लिखोगे तो क्या करने का? स्टॉक रिजर्व भी निकालना। से यस। फिर आंखें बंद करके दोनों में से 10% लेस कर देना। हाँ, बस खत्म। मॉड्यूल को गलती से भी मत देखना, झांसे में ले लेती है मॉड्यूल। मॉड्यूल में 2 क्वेश्चन सॉल्व किए, दोनों अलग तरीके से, और बच्चा सोचते रहता कर रहा क्या है ये एग्जामिनर। कुछ नहीं, यही करना है। क्या करना है बताओ पहले? वैल्यूएशन ऑफ क्लोजिंग स्टॉक आता है आपको, कौन सी प्राइस पर करना? फर्क क्या हुआ आज से? लोडेड प्राइस कर लेंगे ना, कहां बड़ी बात है, लोडेड प्राइस पर। फिर उसका स्टॉक रिजर्व जितनी लोडिंग है रिवर्स कर दो, दोनों में से 10% कम कर दो। लो आ गया आपका आंसर। गुरो मत, इतना ही करना है। नहीं, भरोसा नहीं है। ये देखो, मैं इधर लिखूंगा बाय, मैं ऐसे लिखूंगा बाय स्टॉक ऑन कंसाइनमेंट, लिखा। कोई एक अमाउंट लिखूंगा, जैसे ही अमाउंट लिखूंगा स्टेप 2 क्या करूंगा? उसकी लोडिंग रिवर्स है। इधर क्या लिखना है मगर? सिर्फ 2 स्टॉक रिजर्व। बोलो हाँ। जो स्टॉक रिजर्व लिखूंगा इसमें से माइनस करूंगा 10% और इसमें से भी माइनस करूंगा 10%। बोलो हाँ। बस बात खत्म, यही करना है। यो, अरे समझेगा कहां से यार, मैंने अभी कैलकुलेट थोड़ी ना करके बताया था, मगर इतना तो समझ में आया। पहले क्या निकालने का? स्टॉक। फिर क्या रिवर्स करने का? स्टॉक रिजर्व। फिर क्या बोला है? ओइंग टू द फॉल इन द मार्केट प्राइस द क्लॉथ इन हैंड इज टू बी रिड्यूस्ड बाय हाउ मच? 10%। माइनस 10% इधर से, माइनस 10% इधर से, बात खत्म। से हो सर स्टॉक रिजर्व को क्यों कम कर रहे हो? क्योंकि बेटा अगर मार्केट प्राइस कम हुई तो हमारा लोडिंग जो था प्रॉफिट का वो भी तो कम हो गया ना, प्रॉफिट एलिमेंट भी। बोलो हाँ। हाँ। अब इसमें एक छोटी सी बात है जो मैं आपको सॉल्व करते करते समझाऊंगा, हालांकि उसको ज्यादा तवज्जो मत देना। एक छोटी सी बात है जो आपके मॉड्यूल में हम समझेंगे उसको, मगर बाद में। पहले हम नॉर्मल तरीके से करना शुरू करते हैं। तो क्या आप रेडी हो ना? हाँ। अच्छा, कितने बुक्स में करने के लिए बोला जाएगा आपको? एक कंसाइनर के बुक्स में कंसाइनमेंट अकाउंट और उसका खुद का ट्रेडिंग अकाउंट। पढ़िए क्वेश्चन की लास्ट पॉइंट। प्रिपेयर कंसाइनमेंट अकाउंट एंड ट्रेडिंग एंड P&L अकाउंट इन द बुक्स ऑफ एक्स। प्लीज हाईलाइट द वर्ड ट्रेडिंग एंड P&L अकाउंट। और इसको हम कब करेंगे? लास्ट में करेंगे, पहले नहीं करेंगे, लास्ट में करेंगे। से यस। चलिए फॉर्मेट बनाएंगे अभी आप मेरे साथ। सुन रहा है ना तू? चल फॉर्मेट बना फिर। In the books of Mr. X, consignment account 13 lines. I'll request you all to be real quick when you're doing this. ठीक है बेटा? 13 लाइन्स। यो कंसाइनमेंट अकाउंट, पहले नाम लिख लीजिए, लाइंस बाद में ड्रॉ करना आपने। फिर ट्रेडिंग एंड P&L अकाउंट 12 लाइंस। ट्रेडिंग एंड P&L अकाउंट 12 लाइंस। ये हम सबसे लास्ट में देखेंगे, राइट? Trading and P&L account, you need to draw it for 12 lines. Have you done with this? After you have done with trading and P&L account, you are going to do next. Calculation of commission payable to Y. Calculation of commission payable to Y. Calculation of commission payable to Y. फिर हम करेंगे
बाद में करेंगे। हाँ ठीक है जी, चलिए बी रेडी हो जाइए, आप लाइंस ड्रॉ करके रेडी हो जाइए प्लीज प्लीज प्लीज। मैं सॉल्व करूं क्या आपके साथ? मैं करूं? चलो फिर मैं ही करता हूं अभी। एक सेकेंड, चलिए जनता, हम आप और मैं दोनों मिलकर करेंगे। चलिए पहली लाइन पढ़िए। X of Delhi purchased 10,000 meters of cloth for rupees 2 lakhs। बेटा एक काम करिए, आप ट्रेडिंग और P&L अकाउंट में आ जाइए, ट्रेडिंग और P&L अकाउंट में आ जाइए। आ गए क्या? आओ बाबा मेरे नन्हे मुन्ने बच्चों, रेड कलर की पेन से लिखता हूं, दिखेगा आपको। 2 परचेसेस कितना लिखेंगे सर आप? मैं लिखूंगा 2 लाख। हैं? सही है ना? ट्रेडिंग में बाय किया यो, फिर बाय गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट। अरे कौन से भाव से माल निकलता है इधर से? बता दो, कॉस्ट या लोडेड प्राइस? कॉस्ट, यस ये कंसेप्ट है, एट कॉस्ट। तो बेटा कौन सी वैल्यू आएगी इधर? मैं लिख देता हूं 2 लाख डिवाइड बाय 10,000, सही है ना? हमने भेजा क्या है? इंटू 5,000। तो बेटा कितना आ जाएगा मेरा? 1 लाख। बोलो रे हाँ, बोलो ना हाँ। वेरी गुड, चलो गो ड्यूड। ड्यूड बोलता है चलो सर आगे, चलो आगे। इधर आ जाओ फिर, किधर? कंसाइनमेंट अकाउंट में। इधर क्या लिखोगे? टू ट्रेडिंग अकाउंट। ए नलाइक, कुछ भी बोलता है क्या? 2 गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट बोला था मैंने, है नहीं? ए बेटा इधर माल कौन सी प्राइस पर आता है रे? कॉस्ट या लोडेड प्राइस? लोडेड प्राइस। इधर आपको चाहिए तो मैं इधर लिख देता हूं एट कॉस्ट टू वाई, पर ये मेंटेन होता है ये अकाउंट, एट कॉस्ट टू वाई। तो कितना है बेटा? मैं लिखूंगा 5,000 मीटर इंटू ₹30। कितना आएगा? 1,50,000। एग्रीड? ये लोडेड प्राइस पर माल आया। जैसे ही लोडेड प्राइस पर आएगा, मैंने आपको क्या सिखाया? क्या रिवर्स करने का? लोडिंग। सोचना भी नहीं और कुछ, तुरंत लोडिंग को रिवर्स करो। तो हम क्या करेंगे इधर? वापस वही, बाय गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट, अंडरलाइन कर 5,000 मीटर। एक पर कितना लोडिंग है बेटा? 10 रुपए इंटू ₹10। मेरा लोडिंग कितने से रिवर्स होगा? 50,000। सुन रहा है ना तू? यो फिर क्या करेंगे? अगली लाइन पढ़ते, फिर क्या बोल रहा है? क्या बोल रहा है? X paid 5,000 फॉर फ्रेट एंड 500 फॉर पैकिंग। तो कोई दिक्कत नहीं, कंसाइनमेंट अकाउंट में 2 कैश ऑब्लिक बैंक अकाउंट। सही है बेटा? अंडरलाइन कर हम लिखेंगे क्या क्या किया है? फ्रेट 5,000 और पैकिंग कितना है बेटा जी? 500। आउटर कॉलम में चला जाएगा 5,500। चलो टिक मार्क कर दो। नाउ रीड फर्दर। वाई सोल्ड 4,000 मीटर एट ₹40 पर मीटर। वाई ने सेल किया, कहां दिक्कत है? हम इधर आकर लिख देंगे बाय वाई अकाउंट। सही है ना? कितना लिखूंगा बेटा? 4,000 मीटर इंटू ₹40। ये कितना आ जाएगा? 1,60,000। सेल है ना? एंड इनकर्ड 2,000 एज सेलिंग एक्सपेंसेस।
सो हम इधर लिखेंगे टू वाई अकाउंट, वाई का जो भी खर्चा ऐसे लिखते हैं ना कंसाइनी का, टू वाई अकाउंट। आई विल राइट डाउन सेलिंग एक्सपेंसेस, बोलो कितना है 2000। मैंने इनर कॉलम में लिखा, क्यों सर? बेटा मुझे एक और चीज लिखनी है उसकी, कमीशन, तो मैं उसके नीचे लिख दूंगा। एग्रीड? यस। चलो अभी एक और स्टेप आगे, फिर अगला क्या बोला? Y is entitled to commission of 5% on total sale proceeds plus further 20% on any surplus price realized over rupees 30 per meter. So let's do the calculation of commission. Calculation of commission में first one क्या लिखेंगे आप? first one ordinary commission. Ordinary commission is equal to 5% of total sales. So can I write down 5% of 1,60,000? You said how much my dear friend? 8,000. फिर मैं करूंगा add overriding commission. Overriding commission कितना है? 20% on surplus. 20% ऑन सरप्लस कितना लिखूंगा मैं? तो सरप्लस पहले निकालना पड़ेगा। सो मैं लिखूंगा 20% ऑफ, बेटा जी कितने में सेल करने की बात थी? 30। हमने कितने में सेल किया? 40। सो आई विल से 40 माइनस 30। सो हाउ मच इज सरप्लस? 10 रुपीज पर मीटर। ऐसे कितना मीटर मैंने बेचा है? 4000 मीटर। सो इनटू आई विल राइट डाउन 4000 मीटर्स। So please say 4,000 into 10 is equal to how much? 4,000 into 10 is 40,000 into 20% is equal to how much? 8,000. So how much is commission? 16,000. Total commission is equal to 16,000. बोलो हाँ हाँ। चले अभी आगे। अब इधर आ जाइए कंसाइनमेंट अकाउंट के डेबिट साइड में। कंसाइनमेंट अकाउंट के डेबिट साइड में यहां पर हम लिखेंगे कमीशन। कितना आ जाएगा बेटा? 16,000। आउटर कॉलम में बताओ कितना आएगा? 18,000। सही है। आगे पढ़ते क्या लिखा है? आगे पढ़ो क्या लिखा है? 3,000 मीटर्स वर सोल्ड एट दिल्ली एट 30 पर मीटर लेस 3,000 फॉर एक्सपेंसेस एंड कमीशन। ये किसने सेल किया है? कंसाइनर ने। कंसाइनर का कौन सा अकाउंट है बेटा जी? ट्रेडिंग अकाउंट। अगर कंसाइनर खुद बेचे देन वी आर गोइंग टू मेक द एंट्री इन द ट्रेडिंग अकाउंट। सो प्लीज कम डाउन टू ट्रेडिंग अकाउंट। और ट्रेडिंग अकाउंट के कौन से साइड में लिखेंगे? क्रेडिट साइड में बाय सेल्स। कितने मीटर बेचा है बेटा? 3,000 मीटर्स इंटू रुपीज 30। कितना आएगा बेटा? 90,000। हो कि नहीं? हो, बराबर है। अच्छा एक्सपेंसेस लिख देते, टू सेलिंग एक्सपेंसेस। ये P&L अकाउंट है ना नीचे। टू सेलिंग एक्सपेंसेस, हाउ मच इज द सेलिंग एक्सपेंसेस माय डियर फ्रेंड? दे हैव सेड द सेलिंग एक्सपेंसेस इज 3,000। बोलो ना हाँ हाँ। डन डन डन? यस। रीड फर्दर। Owing to fall in market price, the stock of cloth in hand is to be reduced by 10%। कर देंगे हम, हमने कब मना किया? 10% से आपको माल को रिड्यूस करना है, हम कर देंगे। बट पहले मैं क्या करूंगा? क्लोजिंग स्टॉक विथ कंसाइनर निकाल लेते हैं।
उसने कितने यूनिट बाय किए थे बेटा? कितने यूनिट बाय किए थे? 10,000 यूनिट्स इंटू ₹20, याद आ रहा है ना? उसमें से कितने हमने बेच दिए कंसाइनी के पास? 5,000। और हमने खुद ने कितने सेल किए? 3,000। तो बच गया कितना? 2,000। तो कम से कम इसका तो स्टॉक डायरेक्टली निकाल लूं मैं। यस, ये देखो मैं इधर लिखूंगा बाय क्लोजिंग स्टॉक। क्लोजिंग स्टॉक कितना लिखूंगा? अरे बेटा ये ट्रेडिंग अकाउंट का क्लोजिंग स्टॉक है, सही है ना? कितना आएगा बेटा जी? 2,000। सर ये 2,000 कैसे है? बेटा सिंपल सी बात है, 10,000 माइनस 5,000 माइनस 3,000। सर 5,000 किसके लिए? कंसाइनी को भेजा था। सर 3,000 किस लिए? हमने खुद ने बेचा है। तो 10,000 में से कितना बिक गया? 8,000 गया। बचा कितना है? 2,000। तो हमने इधर कितना लिखना है? 2,000 इंटू ₹20। बताओ बेटा कितना आ रहा है? नहीं समझ में, आवाज नहीं आ रही है। 40,000। समझ में आ गया क्या? अब हमें किसका स्टॉक का वैल्यूएशन करना है? कंसाइनी के पास में भी कुछ स्टॉक है। एग्रीड? सो आइए कंसाइनी के स्टॉक का वैल्यूएशन करने चलते हैं। स्टॉक ऑन कंसाइनमेंट। सर ये वर्किंग नोट अभी हमने बनाई नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, मैं पहले तुमको समझा देता हूं फिर आप देख लो। से हो आर यू रेडी? अब मॉड्यूल ने जो किया है वो मैं नहीं करूंगा, मैं आपको एक ही तरीका बताऊंगा जो आपको फॉलो करना है। बट पहले पढ़िए, क्वेश्चन को पढ़िए। ओइंग टू फॉल इन मार्केट प्राइस द स्टॉक ऑफ क्लॉथ इन हैंड इज टू बी रिड्यूस्ड बाय 10%। ठीक है, यही 8th क्वेश्चन के पास आ जाओ। 8th क्वेश्चन। और बेटा नीचे से 3rd लाइन पढ़िए। 8th क्वेश्चन, owing to fall in the market price the value of the stock of sarees in hand is to be reduced by 10%। कोई फर्क है दोनों सेंटेंस में? नहीं। मॉड्यूल ने इन दोनों सेंटेंस का जो कोई भी इफेक्ट है एक ही सेंटेंस का अलग अलग दिया है। मैं आपको एक ही तरीके से बताऊंगा जो आपको फॉलो करना है। एग्रीड? सो पहले मुझे बताओ स्टॉक ऑन कंसाइनमेंट हमने कैसे सीखा है। पहले मैं लिखूंगा गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट, बराबर है बेटा? तो जितना मुझे याद आता है यूनिट थे कितने यूनिट थे? 10,000 नलायक 5,000 इंटू 30 कितना? 1,50,000। फिर बेटा मैंने बस सिखाया था आपको क्या? एक्सपेंसेस। बोलो ना हाँ। एक्सपेंसेस किसके? कंसाइनी या कंसाइनर? कंसाइनर। तो मैं लिखूंगा एक्सपेंसेस कंसाइनर। बेटा मुझे देखकर बताओ कंसाइनर के एक्सपेंसेस कितने हैं? कंसाइनर के एक्सपेंसेस है 5,500। तो मैंने इधर ले लिया 5,500। बोलो हाँ, क्वांटिटी में कुछ नहीं है। अच्छा तो ये कितना आ गया? 5,000। बोलो हाँ। और ये कितना आएगा? 1,55,500। से यस। ऐसे ही तो करते थे ना। कंसाइनी के कौन से एक्सपेंसेस है? सेलिंग एक्सपेंसेस है, मैं लूंगा नहीं, क्योंकि मुझे क्या समझाया गया है? अप टू द गो डाउन ऑफ कंसाइनी आई शैल टेक अप द एक्सपेंडिचर फॉर वैल्यूएशन ऑफ द स्टॉक। अब 1,55,500 आ गया। अब मैं क्या करूंगा बेटा जी? सेल कितना हो गया? 4,000। सो क्लोजिंग स्टॉक कितना बचा है? बोलो ना। मैं बोलूंगा 1,000। तो अब निकाल कर बताओ मुझे इतना किधर कितना आएगा? x कर बताओ। मेरा कैलकुलेटर कौन उड़ाकर भागा है? कितना आ रहा है? कुछ समझ में नहीं आ रहा। सो मैं इधर लिखूंगा क्लोजिंग स्टॉक एट लोडेड प्राइस। ठीक है, कितना आएगा बेटा? 31,100। एग्रीड? मॉड्यूल ने सिर्फ एक ही अलग काम किया, उसमें कॉस्ट इंक्लूड नहीं की है जो मैंने की है। मॉड्यूल ने क्या इंक्लूड नहीं किया? कॉस्ट इंक्लूड नहीं किया। उनमें उनका लॉजिक था कि दे हैव सेड दैट आई एम नॉट गोइंग टू इंक्लूड द कॉस्ट बिकॉज द मार्केट प्राइस इज फॉलिंग, सो कॉस्ट और एनआरवी विच एवर इज लोअर वी आर टेकिंग इट एट अ मार्केट प्राइस। आई एम नॉट कन्विंस्ड विद देयर सजेशन, दैट इज द रीजन आई एम टेकिंग इट एट व्हाट? 31,100। ये लोडेड प्राइस है क्या? नहीं है।
अरे नलायको, लोडेड प्राइस है कि नहीं है? इस पर स्टॉक रिजर्व निकलेगा कि नहीं निकलेगा? यस। तो बेटा इसको कितने से कम करने की बात बोलिए। सो हम लेंगे लेस, क्या बोलेंगे, रिडक्शन एट द रेट ऑफ 10%। बोलो कितना आएगा? कुछ समझ में नहीं आया। 10% 27 बची गए 3110। हाँ बता। सो वैल्यू, ओ सॉरी, वैल्यू ऑफ क्लोजिंग स्टॉक कितना आएगा? 27990। आई एम हैप्पी, यू आर ऑल राइट, ऑल राइट, ऑल राइट। अच्छा ये किसका वैल्यूएशन किया हमने अभी? स्टॉक। देखो मैंने कुछ भी गड़बड़ नहीं की, मैंने जो फॉर्मेट था वही फॉलो किया। यूनिट, अमाउंट, यूनिट में क्वांटिटी लिखी और अमाउंट में जो अमाउंट है वो लिखा। कंसाइनर के एक्सपेंसेस ऐड किए, कंसाइनी के एक्सपेंसेस ऐड नहीं कर सका क्योंकि सारे एक्सपेंसेस सेलिंग एक्सपेंसेस थे। फिर जो भी स्टॉक आया मैंने बोला उसमें से बचा कितना है, तो तुमने बोला 1000। फिर 1000 का मैंने वैल्यू निकाला एक्स कर, फिर जो भी एक्स का वैल्यू है जैसे एग्जामिनर मुझसे कह रहा है मैंने कितने से लेस कर दिया? 10%। क्या गलत किया? यहां तक तो सही है ना? अब इसके नीचे की स्टोरी में मजा है। कैलकुलेशन ऑफ स्टॉक रिजर्व। कैलकुलेशन ऑफ व्हाट? स्टॉक रिजर्व। बेटा मुझे बताओ पूरे 5000 के माल पर स्टॉक रिजर्व कितना था? जितना मुझे याद आता है 5000 था, चेक कर लो। पूरे 50,000 था, 50,000। अरे तुमने ही तो रिवर्स किया, चेक करो ना। अरे बाबा चेक कर, है देख लो, रिवर्स किया था 50,000। कितना माल बिक गया? 4000। बच गया कितना? 1000। तो स्टॉक रिजर्व भी कितना बचा होगा? 1000 का। सो कितना बचेगा? लो कैलकुलेटर पर लो, 50,000 डिवाइड बाय 5000, बचा कितना? इंटू 1000, कितना बचा होगा? 10,000। कॉमन सेंस की बात है। 5000 पर 50,000 का था लोडिंग, तो बच गया कितना? 1000 यूनिट। तो उस पर स्टॉक रिजर्व कितना होना चाहिए? 10,000। मैं अब भी वही बोल रहा हूं, पहले स्टॉक रिजर्व निकालना एक कॉमन सेंस है। लेस जो एग्जामिनर बोल रहा है 10% से लेस 10%। सो मैं क्या लिखूंगा? स्टॉक रिजर्व, स्टॉक रिजर्व assuming no fall in market price, no fall in market price। तो सिंपल है, जितना स्टॉक बच गया मैं क्या करूंगा? 50,000 कितना स्टॉक बचा है डिवाइड बाय 5000, बच गया कितना? 1000 यूनिट। सही है, ये ब्रैकेट क्लोज। वो यूनिट लिखा है, कितना आएगा? 10,000 लेस कितने से? रिडक्शन, रिडक्शन एट द रेट ऑफ 10%। कितना आएगा बेटा जी? 1000 ना। सो कितना आ जाएगा? 9000। दैट्स इट। हाँ ऐसा ही करना है। कॉस्ट निकालने का, कॉस्ट को 10% लेस करने का, स्टॉक रिजर्व निकालने का, स्टॉक रिजर्व को लेस 10%। दैट्स इट। यो कर लो, ये लिख लो। सदमे में बच्चे। You can write it down. क्या हो डार्लिंग? कुछ नहीं ना, सब ठीक है ना? पानी आ रहा है? Good, good. क्या हो रहा है? गर्म आ रहा है पानी? गर्मी है ना अभी, कोई बात नहीं, हो जाएगा। लूं क्या जी नीचे? ये लिख लो। डन। चलिए अभी आकर लिखते हैं इधर।
तुम नलायक को पहले लिख कर बैठे, अभी नेल पॉलिश देख रही है, मेरी कैसी है तेरी कैसी है। अब मैं क्या इधर इरिटेट हो रहा हूँ इधर अभी। हाँ वो देख मैंने ऐसे कर लगाई है, तूने कैसे लगा? तुला पण दाखवायची आहे का नलायक? यूजलेस। क्लासरूम का एजेंडा तुम्हारा खतरनाक होता है, हर एक चीज डिस्कस कर लेते, फ्रॉम पॉलिटिक्स टू नेल पॉलिश। खतरनाक है तुम। चलिए भाई, बेटा कंसाइनमेंट अकाउंट में आकर लिखिए आप इधर क्रेडिट साइड में, बाय स्टॉक ऑन कंसाइनमेंट। बेटा कितना आया था बताओ ना? 27,990। 27,990। और जैसे ही ये लिखा इधर क्या करते हैं हम? लोडिंग रिवर्स। तो हम क्या लिखेंगे? टू, बोलो, स्टॉक रिजर्व। मुझे जितना याद आ रहा है वो कितना था? 9,000, राइट? प्लीज कैलकुलेट द प्रॉफिट एंड लेट मी नो। प्लीज कैलकुलेट द प्रॉफिट एंड लेट मी नो। कितना आ रहा बेटा? 55,490। सो आई विल राइट डाउन टू प्रॉफिट ऑन कंसाइनमेंट, $55,490। ओके, सही है क्या? अब ये प्रॉफिट आप ट्रांसफर कहां पे करोगे? नॉर्मल ट्रेडिंग एंड पे एंडल अकाउंट। ये प्रॉफिट कहां पे ट्रांसफर करोगे? नॉर्मल ट्रेडिंग एंड पे एंडल अकाउंट। यो आ जाइए इधर, लिखो इधर क्रेडिट साइड में, बाय प्रॉफिट ऑन कंसाइनमेंट। बता दो बेटा कितना था? 490। चलिए अभी आप मुझे बताइए इसका जीपी कितना आएगा? 2 जीपी 3000 इंटू 10, मेरे हिसाब से 30,000 जीपी आना चाहिए। चेक कर लो मैजिक बराबर आ रहा है क्या? बाय जीपी इधर आएगा 30,000 और इधर आ जाएगा 2 एनपी 85,490 माइनस 3,000 मतलब 82,490। चेक कर लियो रे। मैजिक, लॉजिक, इट्स नॉट मैजिक, इट्स लॉजिक। दो मिनट रुको, इधर लेके आ जा, इधर लेके आ जा। यो डन डन डन। देना मत अभी। हाँ ये ठीक हो गया। चलिए अभी वो मेरा बच्चा कुछ भी कर सकता है वो। क्वेश्चन नंबर 8 पे आइए बेटा। क्वेश्चन नंबर 8, बिग क्विक। क्वेश्चन नंबर 8 पे आओ। शोल्डर लूज छोड़ो, अभी अगले इस क्वेश्चन में अपने को पूरा खत्म करने का। शोल्डर लूज छोड़ो, शोल्डर लूज एकदम। हाँ, चेहरे पर एक हल्की सी स्माइल। चलो वेरी गुड। Now let us read. Vandana Traders of Delhi purchased 10,000 piece of sarees at ₹100 per saree. नलायक, 100 रुपीज में कहीं मिलती है क्या? तुम दर्द मुझे पूछो। Out of these sarees,
6,000 sarees were sent on consignment to Vastralaya of Jabalpur at selling price of rupees 120 per सारी. तो उन्होंने किसको भेजा? जबलपुर में. दिल्ली से गया जबलपुर में माल कितने रुपए में? 120. कितने यूनिट गए? 6,000 यूनिट. आगे, द कंसाइनर पेड 3,000 फॉर पैकिंग एंड फ्रेट. Vastralaya sold 5,000 sarees at 125 per saree and incurred 1,000 for selling expenses and remitted 5 lakh to Delhi on account. उसका क्या है देखेंगे. अब ये 1.5 आना है. देखो कितने रुपए में बेचने के लिए बोला था? 120. ये नाला कितने में बेच रहा है? 125. 1.5 आना. ओवर राइडिंग कमीशन है क्या देखेंगे अपन. They are entitled to commission of 5% on total sales. Please underline the word total sales. फिर plus a further 20% commission on any surplus price realized over rupees 120 per saree. Simple. 3,000 sarees were sold at rupees 110 per saree. सर 3,000 कहाँ पे सेल हुई है? ये नालायक लिखना भूल गया. वो दिल्ली में सेल हुई है. दिल्ली में कितनी सेल हुई है? 3,000. और किसने सेल किए? वंदना ने. वंदना ट्रेडर्स ने. यो, owing to fall in the market price, the value of the stock of the sarees in hand is to be reduced by 10%. Prepare consignment account, trading account in the books of Vandana traders and their account in the books of agents Messrs Vastralaya of Jabalpur. मतलब वस्त्रालय के अकाउंट में हमको एक और अकाउंट बनाना पड़ेगा जिसका नाम क्या है? वंदना ट्रेडर्स. हम बनाएंगे, कहां दिक्कत है. चलिए अकाउंट बनाते हैं जल्दी से. देरी किस बात की ना, कोई देरी नहीं करेगा. चलिए मैं आपको फॉर्मेट दिखा देता हूं. इन द बुक्स ऑफ वंदना कंसाइनमेंट अकाउंट 9 लाइन्स. कंसाइनमेंट अकाउंट 9 लाइन्स. हो जाएगा ना, वो कम लग रहा है पक्का. बांट दे फिर, बांट दो. हाँ सब लोग, हेलो, सब लोग इधर के इधर खा कर जाएंगे. कोई घर पर ले जाकर है ना, कुछ नहीं करने वाला है. सब लोग इधर के इधर खा के जाओ. चलिए कंसाइनमेंट अकाउंट के बाद में नेक्स्ट ट्रेडिंग अकाउंट 7 लाइन्स. ट्रेडिंग अकाउंट 7 लाइन्स. ट्रेडिंग अकाउंट के बाद में अगला वस्त्रालय जबलपुर अकाउंट 7 लाइन्स. ये इन द बुक्स ऑफ वंदना ही चल रहा है. इन द बुक्स ऑफ वंदना ही चल रहा है. फिर कमीशन पेबल 5 लाइन्स. वर्किंग नोट कमीशन पेबल 5 लाइन्स. यो, फिर क्या करेंगे बोलो ना. वैल्यूएशन ऑफ क्लोजिंग स्टॉक. वर्किंग नोट नंबर 2, वैल्यूएशन ऑफ क्लोजिंग स्टॉक. अब थोड़ी सी प्रॉब्लम है, हम ये फास्ट फॉरवर्ड में करेंगे क्योंकि सब कुछ सेम टू सेम है. जहां पर थोड़ा बहुत चेंज होगा हम चेंज कर लेंगे. ठीक है. चलिए आइए अभी लाइंस ड्रॉ कर रेडी हो जाइए और फिर चलते हम, आप और मैं शुरू करेंगे कंसाइनमेंट अकाउंट. बी क्विक. लाइंस ड्रॉ करके रेडी कर लीजिए. सर वो मैसर्स वस्त्रालय के बुक्स में कंप्लीट नहीं किया अभी तक आपने. वो कर लेंगे बेटा, डोंट वरी, विल डू इट. भाला लेके मारना उसको. पेन से क्या रहना लाइक. बोल रहा हूं डोरेमोन ओरेमोन देखना बंद कर. गलत परिणाम हो रहा है तेरे दिमाग पर. जब देखे तब पागल जैसे देख करते रहता है हरकतें, नालायक.
चलते हैं अभी आगे. यस. अरे अभी तक कैसे नहीं सुधरा है? आज सब लोग एक एक रुपया कंट्रीब्यूट करना प्लीज, रिक्वेस्ट है. आज उस बच्चे को दिखा के लाएंगे अपन डॉक्टर को. वो ठीक करना जरूरी है, उसका हमारा कर्तव्य है, हमारा क्लासमेट है हमारा. सब लोग प्लीज एक एक रुपया, और किसी ने भी अगर 1 रुपए के ऊपर दान किया ना तो याद रख लेना. मतलब ज्यादा ये मत करना, 1 रुपया, नहीं तो क्या फिर और देखेगा और डोरेमोन नालायक, चस्का लग जाएगा. ठीक है, चलो आ जाओ. लेट्स कम डाउन. चलो अभी सभी का ध्यान इधर. अम्मा अम्मा अम्मा, ध्यान उधर. चलो अभी सभी का ध्यान एकदम रेडी. चलो रीड करो. वंदना ट्रेडर्स ऑफ दिल्ली परचेस 10,000 पीसेस ऑफ साड़ी एट ₹100 पर साड़ी. कांग्रेचुलेशन. कहां पर लिखेंगे? ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट साइड. आ जाइए ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट साइड. और ये नहीं आया इधर, क्यों नहीं आया ये? तुम्हें पता नहीं है? ठीक है मैं बोल रहा हूं, लिख बेटा. ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट साइड में लिखो 2 परचेसेस. बोलो बशी. इन द ब्रैकेट 10,000 इंटू ₹100. कितना आएगा? 10 lakhs. ये नलायक कुछ नहीं लफड़ा करके आया. ये मिल जाएंगे ना सबको? नहीं तो इधर ही बैठे ही जाएंगे नहीं आज घर पर. चलो अगला चलते. आउट ऑफ दिस सारीज 6,000 sarees were sent on consignment to वस्त्रालय of जबलपुर at a selling price of 120 per saree. Agreed? तो बेटा मैं इधर लिखूंगा बाय गुड सेंट ऑन कंसाइनमेंट. ए नलायक को तुमको कौन सी प्राइस पर सिखाया मैंने निकालना बाहर माल को? एट कॉस्ट. वेरी गुड. सो लिखते हैं 6,000 इंटू ₹100. कितना आएगा? 6 लाख. ठीक है. क्या भाव पर भेजा है? 120. तो इसका सेकंड इफेक्ट कहां जाता है? कंसाइनमेंट अकाउंट को डेबिट. तो चलिए आइए कंसाइनमेंट अकाउंट को डेबिट करते. सही है ना? कंसाइनमेंट अकाउंट को डेबिट टू गुड सेंट ऑन कंसाइनमेंट 7,20,000. सर ये फिगर कैसे आया? ये लिखो यहां पर 6,000 इंटू ₹120. सही है ना? जैसे ही ये लिखा क्या रिवर्स करना पड़ता है? लोडिंग. तो इधर से लोडिंग रिवर्स करो. बाय गुड सेंट ऑन कंसाइनमेंट 1,20,000. सर ये कैसे आया? ये भी बिल्कुल सरल है बेटा एकदम. क्या करेंगे? 6,000 इंटू ₹20. कितना आएगा? 1,20,000. सही है ना? आगे नेक्स्ट क्या है? बोलो प्रभु. अगला क्या है? फिर उसने कुछ खर्चा किया. द कंसाइनर पेड 3,000 फॉर पैकिंग एंड फ्रेट. ये डेबिट साइड में टू बैंक एक्सपेंसेस अकाउंट. कितना आएगा? 3,000. टू बैंक अकाउंट 3,000. सही है? फिर कितना बेच दिया? द वस्त्रालय सोल्ड 5,000 साड़ी एट ₹125 पर साड़ी. क्रेडिट साइड में बाय वस्त्रालय सेल्स, बाय वस्त्रालय अकाउंट. एग्रीड? कंसाइनमेंट अकाउंट के बोलो ना. हाँ. कितना लिखेंगे बेटा जी? बोलो बाबा, बोलो बोलो. बोलने के पैसे मिलेंगे तुमको आगे. 5,000 इंटू ₹125. बोलो कितना आता है? 6,25,000. इसकी लोडिंग रिवर्स नहीं होगी. राइट? चलते अभी अगला पढ़िए. क्या लिखा है? एंड इनकर्ड 1,000 फॉर सेलिंग एक्सपेंसेस. एग्रीड? कितना खर्चा किया है?
1000। सो बेटा जी हम कहां पर लिखेंगे? डेबिट साइड में। चलिए आइए लिखते हैं हम। टू वस्त्रालय अकाउंट, वस्त्रालय क्या लिखूंगा बेटा अंडरलाइन कर कर? बोलो ना। एक्सपेंसेस कितना आएगा? 1000। बेटा लगे हाथ तो कमीशन भी निकाल लेते क्या? निकाल लेते यार, कमीशन भी निकाल लूं। चलो कमीशन निकालते हैं। कमीशन पेबल, कितना कमीशन है? बोलो कितना कमीशन है? 5%, 5% ऑन टोटल सेल्स। तो बेटा टोटल सेल्स कितना आया था? 5% ऑफ 6,25,000 है क्या? बताओ कितना आएगा? 31,250। और बेटा ऐड ओवर राइडिंग कमीशन भी है। ओवर राइडिंग कमीशन कितना है? 20% ऑन सरप्लस, ऑन सरप्लस। सो बेटा 20% कितना लूं? 20% ऑफ इंटू में करूंगा। हमने कितने में बेचने को कहा था? 120 में। बेचा कितने में? 125। सरप्लस कितने का हुआ है? 1 यूनिट के ऊपर 5 रुपए, हाँ या नहीं? 5 इंटू 5,000, 25,000 का 20%। बोलो रे नालायको, कितना आ रहा है? 5,000। तो हमारा टोटल कितना आ जाएगा? 36,250। सही है ना? यो तो चलिए हम आते हैं, कहां पर आएंगे? 36,250 लिखा बेटा आपने? ओ कहां गया मैं? ओ सॉरी, काय झालं बेटा? तिकडे कोपऱ्यात। टू वस्त्रालय एक्सपेंसेस, फिर क्या है बेटा इधर? कमीशन। बोलो बेटा कमीशन कितना है? 36,250। आउटर कॉलम में मैं लिखूंगा 37,250। सही है ना? अब बेटा वस्त्रालय अकाउंट भी बनाया आपने? बनाया कि नहीं बनाया? बनाया। सो वस्त्रालय अकाउंट में एक तो इसकी पोस्टिंग करनी है। सेस वस्त्रालय अकाउंट के कौन से साइड में? डेबिट साइड में। इधर क्रेडिट किया तो वस्त्रालय के डेबिट साइड में, क्योंकि बनाया ना अकाउंट। और ये वाला पोस्टिंग किधर करेंगे? वस्त्रालय अकाउंट के कौन से साइड में? क्रेडिट साइड में। बनाया ना? ये लो। अरे बाप रे, चलो आ जाओ। इधर कहां पे बनाया था आपने वस्त्रालय अकाउंट? हाँ, वस्त्रालय अकाउंट जबलपुर। सो कहां पर लिखूं बेटा मैं? डेबिट साइड में क्या लिखूंगा? 2 कंसाइनमेंट अकाउंट। बताओ कितना था बेटा वो? 6,25,000। वेरी गुड, यू आर लवली पीपल। और क्रेडिट साइड में भी क्या लिखूंगा? बाय कंसाइनमेंट अकाउंट। क्या लिखना पड़ेगा इधर? इन द ब्रैकेट एक्सपेंसेस। बोलो ना कितना आएगा? 37,250। सही है? अब बेटा क्या हुआ है? अगली लाइन पढ़िए। एंड रेमिटेड 5 लाख टू दिल्ली ऑन अकाउंट। बेटा एंट्री करो, दिल्ली में पैसा मिला, एंट्री करो। कैश ऑब्लिक बैंक अकाउंट डेबिट टू अंदना, सॉरी टू वस्त्रालय जबलपुर। हाँ नहीं? तो वस्त्रालय जबलपुर के कौन से साइड में लिखेंगे? क्रेडिट साइड में। बाय कैश ऑब्लिक बैंक अकाउंट। बताओ कितना लिखेंगे? 5 लाख। 5 लाख ही तो आया ना कैश? यस सर। इसका कंसाइनमेंट अकाउंट पे कोई इंपैक्ट नहीं आएगा क्या? बिल्कुल भी नहीं, सोचना भी मत। फिर आगे चलते क्या बोले? दे आर एंटाइटल्ड टू कमीशन ऑफ 5% ऑन टोटल सेल्स प्लस फर्दर 20% कमीशन ऑन एनी सरप्लस प्राइस रियलाइज्ड अबाउट ₹120। वी हैव ऑलरेडी डन इट। आगे 3,000 साड़ीज वर सोल्ड एट ₹110 पर साड़ी। आ जाओ इधर, ट्रेडिंग अकाउंट में आ जाओ रे नलायको। ट्रेडिंग अकाउंट में कितने में बिकी है साड़ियां? बाय सेल्स
कितने में बिकी रहे ना को? 3000 सारीज इंटू ₹110, बोलो कितना आएगा? 3,30,000। डन डन डन। फिर आगे क्या बोल रहे हैं? Owing to fall in the market price, the value of the stock of the sarees in hand is to be reduced by 10%। ये हम बाद में करेंगे, पहले क्या करना है? क्लोजिंग स्टॉक निकालना है। किसका? ट्रेडिंग अकाउंट का। कितना क्लोजिंग स्टॉक बचा होगा? देखो खरीदा कितना था? 10,000 यूनिट। 6,000 बेच दिए किसको? कंसाइनी को। और 3,000 बेच दिया, एग्रीड। बच गया कितना? 1,000। ये लिखो इधर, आंखें बंद कर कर, बाय क्लोजिंग स्टॉक। नहीं आंखें खोल लो, सॉरी गलती हो गई मुझसे। बाय क्लोजिंग स्टॉक कितना लिखेंगे? 1,000 यूनिट इंटू ₹100, कितना लिखेंगे? 1 लाख। यो 1 लाख लिखना है आपने इधर। यो चलिए वही पुरानी बात, स्टॉक का वैल्यूएशन। यो चलिए आ जाइए, स्टॉक का वैल्यूएशन करने के लिए प्यारे प्यारे बच्चे आएंगे स्टॉक का वैल्यूएशन करने के लिए। चलिए लिखिए, गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट, ठीक है? कंसाइनमेंट यहां पर लिखेंगे यूनिट और अमाउंट। बेटा कितने यूनिट बेचे हैं? 10,000। ओह झूठ बोलते हो कि ना लाइक 6,000। लोडेड प्राइस कितनी है? 6,000 इंटू 120, 7,20,000। उसी के साथ ऐड कंसाइनर्स एक्सपेंसेस, बोलो रे, यूनिट में नील। और इधर कितना एक्सपेंसेस है बेटा? कितना है? 3,000 है, डायरेक्ट दिया है ना? अच्छा, कंसाइनी ने कोई एक्सपेंसेस किए हैं क्या? कंसाइनी ने कोई एक्सपेंसेस किए गोडाउन तक पहुंचाने के लिए? नहीं। जो भी किया है वो कौन सा एक्सपेंस है? सेलिंग एक्सपेंस। वो हम कंसीडर नहीं करते। बेटा 6,000 में से कितनी साड़ियां बेच दी? 5,000। कितनी बच गई? 1,000। ये क्लैरिटी है। सो हम यहां पर लिखेंगे क्लोजिंग स्टॉक, क्लोजिंग स्टॉक 1,000 एक्स, बताओ कितना आता है? 1,20,500। बोलो ना हाँ। यो ये स्टॉक का वैल्यूएशन हुआ। फिर उसके बाद में क्या करते हैं? स्टॉक रिजर्व, ये हम लिखेंगे स्टॉक रिजर्व बिफोर फॉल इन मार्केट प्राइस, बिफोर फॉल इन मार्केट प्राइस। एक अरे बाप रे, एक गलती होगी ना इधर, लेस 10% करना पड़ेगा ना, वो भूल गया। ओ सॉरी, तीखा लग गया बाबा, सॉरी बाबा। सीपीटी के बैच में मिस्टेक हो गई, फाइनल के बैच में हो तो कुछ वांदा नहीं, सीपीटी में गलती नहीं होनी चाहिए, सॉरी। आगे से नहीं करूंगा माय लॉर्ड। 120/100 लेस करो बेटा, रिडक्शन एट द रेट ऑफ 10%। बेटा कितना आएगा? 12050। बताओ कितना आएगा फिर? 108,450। सही है, यहां तक आ जाओ आप पहले, राइट। यो क्या जनाब, ठीक है। चलिए अभी एक क्या करते हैं, स्टॉक रिजर्व अगर फॉल इन मार्केट प्राइस होती ही नहीं तो कितना होता? राइट, मुझे बताओ कितना स्टॉक रिजर्व था जब माल भेजा था? पूरा लोडिंग बताओ कितना था? 1,20,000। कितने यूनिट पर? 6,000 यूनिट। कितना बच गया? 1,000 यूनिट। तो मैं क्या करूंगा, सिंपल सी बात है, मैं बोलूंगा 1,20,000। अरे यही तो था ना स्टॉक रिजर्व, चेक कर लो, लोडिंग यही तो थी ना कंसाइनमेंट के क्रेडिट साइड में। डिवाइड बाय कितने यूनिट? 6,000 मल्टीप्लाइड बाय 1,000 यूनिट्स। बताओ कितना आ रहा है? नहीं बताओगे? 20,000। एग्रीड। लेस कितना लेस रे नलाई को? लेस रिडक्शन जितना बोल दिया एट द रेट ऑफ 10%, तो मैं लेस कर दूंगा 2,000। अरे बताओ स्टॉक रिजर्व कितना आएगा? तो
तुम तो एकदम बराबर बताते हो यार, इतने होशियार कब से हो गए? चॉकलेट खाने के बाद 1,08,450। एम आई कम्युनिकेटिंग? यस। डन डन डन। चलिए आइए, अभी हम कहां पर लिखेंगे इसको? कहां गया मेरा कंसाइनमेंट अकाउंट? ये रहा। इधर लिखेंगे क्रेडिट साइड में बाय स्टॉक ऑन कंसाइनमेंट। नहीं बताओगे कितना है? बता दो यार। 1,08,000 1,08,450। अब उसके नीचे क्या लिखेंगे? इधर टू स्टॉक रिजर्व। बताएंगे जरा मैडम कितना आएगा? ये 3,000। चलो प्रॉफिट बता दो रे नलाई को। अरे 18,000 लिखा था मैंने इधर, कितना आ रहा है? सबके अलग अलग आ रहे हैं। 75-200 इज अ कॉल, सही है। सो हम इधर लिखेंगे टू प्रॉफिट। क्या हो रहा है यार, सीरियस नहीं गए? देखो बोल तो बेच दूंगा ना लाइक तेरे को, अगर नहीं काम किया तो बराबर। टू प्रॉफिट ऑन कंसाइनमेंट 75-200। अरे इसको वहां पर ले जाओ रे। कहां पर? समझ में नहीं आ रहा है? ट्रेडिंग के क्रेडिट साइड में। ट्रेडिंग नहीं, एक्चुअली P&L के क्रेडिट साइड में। हाँ या ना? चला ले चलो इसको 75-200 को। पहले कहां गया वो? सो इधर बाय P&L अकाउंट में हुआ बेटा मैं, बाय प्रॉफिट ऑन कंसाइनमेंट। बताओ 75-200। अब चलो मुझे जीपी बता दो पहले इधर। 2 GP 6,03,30,000 कितना आ रहा बेटा? 10 रुपए का प्रॉफिट, तो 30,000 आना चाहिए। ये टैली और बाय जीपी 30,000 और नलाई को 2 NP 1,05,200। बोलो हाँ, सही है ना? सुन रहा है ना तू? नीचे लूं? हो गया? डन ब्रो? ब्रो का डन। डन डन डन। तुम्हारा भी डन डन डन। किसी को कोई क्वेरी? नो क्वेरी टिल सो फार? दैट्स लवली। अब जरा हम आंसर चेक कर लेते कि जो हमने निकाला वो सही है कि नहीं है। अरे एक वस्त्रालय अकाउंट रह गया यार पेंडिंग। वस्त्रालय अकाउंट का बेटा अकाउंट लास्ट में सेटल कर देना विद द बैलेंस अमाउंट ऑफ कैश। बेटा बताओ कितना बैलेंस अमाउंट ऑफ कैश है? आप या तो बाय बैलेंस कैरिड डाउन लिख सकते हो, या आप ऐसा बोल सकते हो कि उसका अकाउंट सेटल हो गया। तो अकाउंट सेटल हो गया तो क्या लिखोगे? कैश ऑब्लिक बैंक। दोनों में से कोई एक चीज चलेगी। बताओ कितना आएगा? 87,750 और ये अकाउंट क्लोज हुआ। राइट? So that brings us to the end of the question number 5th and 8th. Okay? Question number 5th and 8th हो गया। मैं आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा कि वापस एक बार जाके रिवाइज कर दो, इससे सिर्फ कंसेप्ट क्लियर होता है आपके। दैट इज द रीजन आई एम रिक्वेस्टिंग यू गो बैक एंड स्टडी इट प्रॉपरली। ठीक है? थैंक यू सो मच।